Inspire 88 podcast. This is me, Manur, and this is Oz. Assalamualaikum. I'm sure you are a student as well who's watching this right now, struggling with what kind of career you want to choose. I've met a lot of people who don't have a clear defined path where they want to go. And so right now we're going to discuss that. We have our very honorable guest, Ms. Asha Ahmed, present with us today. Thank you very much for inviting me. It's really an honor. Thank you very much. It is an honor for us to sit with you. FTU is like my second home. In fact, it's my first home. So, from 1994 till 2007, I studied here from grade 3 till bachelor's. So, it has been a great journey. I was part of the student council, one time president and two times vice president. I learned a lot from my entire experience here. And I think students actually think that this part is everybody has to study, but this is actually you're getting prepared for practical life. And when you see me here, I still wear white uniform, and I really feel very happy when I see these students. I still feel that connection. Yeah. Because when I was invited here, I was asked to wear my uniform, and I actually wanted to wear my sash, my president's sash, so that to live that memory again. It was a great time that I had, and I think every student should enjoy their journey because you are getting prepared for some big tasks in life. And FTU is, since I told you, it was like my home. So the teachers and everything that I've learned in this place, I've applied in my life, and I think it was. I feel very successful. That. So ma'am, could you please tell us about some of your earlier experiences in life? What led you to choose your career? Any role models, anybody who looked up to you? I'm being honest with you. I never wanted to be a lawyer. Oh, I didn't want to say that, but this is the truth. Yeah, I was a psychology student, and yes, so and I wanted to pursue my career in psychology. So I'm from an army family, and my father actually wanted that I should actually do something which is much more practical. So psychology back then in 2007, which is like 17, 18 years ago, we didn't have that much scope here in Islamabad, especially. And since I was the youngest one and very pampered child, he never wanted me to leave Islamabad or leave him, and he was very caring about me. So he said that I want to do law, and I was like, no, I don't want to. I failed the exam. I won't go to school. I was very rebellious, because you actually get this from leadership. That you want to speak your heart out, and I wanted to discuss that, but actually I was arguing my case. I was arguing my case, and I lost the case. But that one lost has actually given me a lot of success when it comes to the field I am in right now, because my specialty is family law. So I deal with all sorts of family cases, and they are very serious and noisy and disturbing sometimes. So, but the important thing is that all the things which I've learned here, combined efforts of my teachers, be it here or the seniors I work with, they have helped me conquer this big step, which people actually say that females can't become good lawyers, Definitely. or they can't argue their case. They are very naive beings. We are not. They have not seen us. They have not seen us. So it is all about social conditioning. What you think, what you want to think. So my father actually wanted me to do this, and then maybe go into government service or stuff like that. When I entered into law, I loved it so much that I ended up being a trial lawyer, which I am doing right now. I'm also moving forward towards mediation, because this is what courts now want. This is now what the society demands. That there are a lot of things which can settle by just talking to each other. Like you guys are talking to me regarding my journey. Yes. So journey, destination is not important. That is a journey. You never reach this. The destination is actually your grave. Yeah. So we don't want to talk about that. We want to talk about the journey which we are having. So this is very important in life to learn that the journey is never easy. You get exams, sometimes good grades, sometimes bad grades. Yeah. You go to the hair salon, sometimes good hair, sometimes bad hair. You get your eyebrows done, sometimes good, sometimes bad. So it's a journey. It's a learning process. But it's important that you learn from good and bad experiences. So I learned that I've lost the battle.
but I haven't lost the war. I went into law school. Initially it was 3 years, after graduation. Now it is 5 years after your second year, which is your intern. You can study whatever you want in your high school years, like if you do A levels or if you do first year, second year normal, like A and C, you take whatever subjects you want, and then you have to pass your pre-entrance law exam, and then you get to the university. It's a 5 years program, and you learn how to become a good lawyer. But you don't become a good lawyer till the time you go to the court. Right. So, as you told us about your father, तो family supported बहुत बड़ा जो एक अगर दिया होता है कि जब आप choose करो तो family support. So what was the reaction of your mother, like your siblings, your father, थोड़ा सा बताइए. This is a very emotional topic. You're getting me. But yes. It was my father's 80th birthday yesterday. If he was there, he would have been 80 years old. So I lost him just weeks after I got my license to practice law. So it is something very emotional for me. He was my only support. My mother had got to do law because she was like, लड़की है, बहुत already इतना बोलती है और बोलेगी. Stuff like that. My brothers were like, because I told them I'm from an army family, so all of them are defense employees, and this one is a doctor. So they were like, no, how we will marry her? So I mean, this is because people think this profession is very difficult, and you become very insensitive. I think doctors are more insensitive. They can't people like crazy, so I think they're more insensitive. But Desensitized. so I mean, this profession, a lot of people think that it is not for females. तो मेरी family में भी ऐसे ही लगा, ऐसे ही दबाव हुआ था कि नहीं ये नहीं करेगी. But my father, he was actually foreseeing the environment ladies are coming into, because I'm also mother of a 10-year-old daughter, and she wants to be a lawyer too. But her motivation is totally different, because she thinks that even on Sundays we are earning. We're getting money on Sundays also, sitting at home. She's not saying the hard work. She always thinks of that we are getting the money even on Sunday. So this is her motivation, and I want her to land into this because we need a lot of females to get into legal education. It doesn't matter that you practice law or not, you come to courts, what does matter? You should know your rights. Awareness is good. It is very important. And you actually want to speak up about yourself and then others, but in a respectful way. Yes. Sometimes we think that speaking about yourself means that you touch somebody's leg. No, it's not like that. But हमारी family culture ऐसा ही है कि खवातीन को जैसा निकाह का फंक्शन जब होता है, Yes. तो even दुल्हन भी वहाँ मौजूद नहीं होती, मर्दों के दरमियान हो रहा है. क्यों भाई, उसका नहीं हो रहा. और जब आप लॉ करते हैं तो आप अचानक से गैदरिंग से हटकर लोग आपको कहते हैं कि जब आप इधर साथ आके बैठे देखें इनका नामा फिल हो रहा है, आप आके देखें इसमें क्या लिखा हुआ है. तो यू गेन दैट इम्पोर्टेंस बाय गेटिंग दिस डिग्री, जो आपको किसी और डिग्री से शायद उसका नहीं मिल सकती. मैंने बताया आपको दुल्हन बनी है, आपने बहुत महंगा लहंगा पहना हुआ है, बहुत महंगा मेकअप करवाया हुआ है, बट आप उस इवेंट में मौजूद नहीं. क्योंकि वो अवेयरनेस ही नहीं, आप अवेयरनेस हो तो आप 6 महीने पहले बताते हैं कि ड्रेस तो मैं 10,000 का पहन रही हूँ, पर निकाह में मौजूद हूँ. मैंने देखा क्या हो रहा है, क्या लिखा जा रहा है, क्यों लिखा जा रहा है, किस लिए लिखा जा रहा है, लिखा जाना चाहिए मैं भी नहीं, खाली छोड़ना चाहिए, मेरे राइट्स क्या हैं. सो आई थिंक फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट देन अगेन आई वुड से इन अ रिस्पेक्टफुल वे. वी विल नॉट लीव दैट पार्ट, बिकॉज़ समटाइम्स यू से दैट हम सब कुछ बात कर लेंगे, ब्लंट होना कोई अच्छी बात नहीं है, अपनी बात को दूसरे को कन्वे करना बहुत अच्छी बात है. सो यस, माय फैमिली वाज द सेम, ओनली माय फादर स्टूड अप कि नहीं इसने लॉ करना है, एंड इवेंचुअली आई डिड इट. And then I did my masters in human rights. और उसकी वजह भी मेरी मदर बनी, because she went to the court because her father की death हो गई थी, and she had to go only months just to get कोई जो formal procedure होता है. तो उन्होंने देखा कि मैं हूँ और पीछे से वहाँ और lawyers भी, और साथ वो जो उसको कहते हैं हवालात आ रही है, chains में लगे हुए बंदे होती हैं. उन्होंने वो देखा, घर आकर मैंने इसका मास्टर्स में एडमिशन करा दो, ये पढ़ाएगी, ये इंटीग्रेशन नहीं करेगी. But it also helped me, like my masters हो गया, but फिर भी मैंने पढ़ाया नहीं, and still I'm practicing. But ये आपको बहुत social conditioning जो है ना, तो बाहर के लोग कर रहे हैं, पर हमारा दिल नहीं कर रहा होता. That's true. वरना आपको किसने बताया कि ये मुश्किल है, आप इसको किसी ने किया नहीं. तो ये हम अंदर से इन चीज़ों को फील करते हैं. सोशल मीडिया plays a big role in this.
वो लोगों का सोशल कंडीशनिंग कर देता है, माइंड की कंडीशनिंग कर देता है कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी, ये चीज़ आसान है, ये चीज़ मुश्किल है। अब लोग क्या पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं, मुझे भी क्या पहाड़ चढ़ने को अच्छा वाला खाना नहीं मिल रहा है, ताज़ी हमारे खा लेंगे, हमें नहीं जाना पहाड़ पे, बहुत मुश्किल है, पर चढ़े तो नहीं ना देते, खुद से तो नहीं चढ़े, तो क्या पता कि मुश्किल है कि आसान है। तो हमें ये जो सुनते हैं हमें के लोगों को सोशल कंडीशनिंग के हवाले से बातचीत होती है, नाउ इज द टाइम तो वी कैन फील व्हाटएवर वी वांट टू फील, बट एक जो एक स्पेसिफिक दायरा है जिसमें ये तो रिस्पेक्ट का, उसको हमने ये बहुत जरूरी है। तो आप कितने टाइम से प्रैक्टिस कर रही हैं? 13 years. So like during the start of that journey, बीच में भी, even now, आपको being a female in a very male oriented field, आपको उस तरह फील होता है कि कुछ ऐसे challenges हैं जो सिर्फ females के लिए होते हैं इस field में specific? देखिए फीमेल्स के लिए ना ओवरऑल चैलेंजेस होते हैं। ओवरऑल चैलेंजेस में आपको इसका बता दूं कि मैंने आज फाउंडेशन लगाई है, अब मैं पक्का ढूंढ लूँ तुम्हारा Big challenge, big challenge. My husband is also a lawyer. Oh my God. उनका कोई फाउंडेशन वाला प्रॉब्लम है, उन्होंने मुझे पानी मार वो रेडी हो गए। मैंने आप लोगों के लिए आधा घंटा मेकअप लगाया। यूजुअली आई वेयर 24 आवर फाउंडेशन, लेकिन हमारा जो कोर्स का एनवायरनमेंट है ऑब्वियसली हॉट ह्यूमिड है, इट वेयर्स ऑफ। तो ये चैलेंज है, आप ये चाहे मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, लॉयर हूँ, चैलेंज है। आई वांट टू वेयर माय फाउंडेशन, आई वांट टू लुक गुड व्हेन आई गो आउट। मैं हील्स पहनने की शौकीन हूँ, बाहर निकले मार्केट में शॉपिंग में आपसे टॉरस चले जाएंगे, हील में नहीं पाओगे दर्द होगा। तो ये चैलेंजेस तो खवातीन के साथ हैं, इसलिए हो सकता है कि आप जूते कंफर्टेबल पहन लें, मेकअप अच्छा ले लें, बाकी सब फील्ड्स एक जैसे हैं। क्या आपके माइंड में है मुश्किल? सब फील्ड्स में जो बराबर परेशानियां हैं, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल हम इसको देख लें कि जब हम इस्लामाबाद में जो बैठे हुए हैं, तो ये सबसे सिविलाइज्ड सिटी है और पूरी दुनिया का जो प्लान्ड सिटीज की लिस्ट है उसमें भी इसका नाम आता है। हाउ मेनी फीमेल एक्सेसिबल वॉशरूम्स डू यू सी इन पब्लिक? Very malls में हर एक places में शायद। लेकिन आपको मार्केट में फीमेल एक्सेसिबल वॉशरूम नहीं मिलेगा। अब इससे क्या फर्क पड़ता है मेरे पास कौन सी डिग्री है, इसी को साथ देखो। अब आप देखिए, मैंने बताया इससे टॉरस और बार बाजार में फर्क है, ठीक है। अब फर्क क्या है कि वो जो आपसे चार्ज कर रहे हैं वो उन सर्विसेज का कर रहे हैं जो एनीवेज किसी को भी मिलनी चाहिए। सब लोगों का एंटाइटलमेंट है, कंफर्टेबल जगह पर शॉपिंग करना, लेकिन वो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, बाकी लोग प्रोवाइड नहीं कर रहे, बार बाजार वाले नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो वहाँ पर आपको चीज़ बेहतर थोड़ी सस्ते दाम में चाहिए, वो आपको AC पंखा वॉशरूम क्लीन मिल रहा है, तो वो उस चीज़ का चार्ज कर रहे हैं। लेकिन हम जापान को देख लें, जो डॉक्यूमेंट्री से उनके स्कूल में जैनिटर्स होते ही नहीं हैं, बच्चे खुद साफ करते हैं। अब आप कहते हैं कि बच्चा क्या बाथरूम धोता होगा, धोए ही क्यों अगर उसको साफ करते हैं? अगर हर बंदा अपना काम पूरा करता जाए तो उसको साफ करने की जरूरत नहीं है। तो लॉ फील्ड भी ऐसा ही है, वही चैलेंजेस हैं जो आपको एज ए सोसाइटी अगर मार्केट में जाना है तो चैलेंज है, उसके अलावा कोई चैलेंज नहीं। ये बहुत प्रैक्टिकल फील्ड है फीमेल्स के लिए। वर्किंग आवर्स देखिए किस तरह वर्किंग आवर्स से बैठे हैं। मैं आपके साथ, अब आप सोच रहे मेरे क्लाइंट से क्या हो रहा है, वी आर इन्फॉर्म्ड एक दिन पहले कि जी आज मेरी ये मसरूफियत है, सुबह आई वेंट टू द कोर्ट, वहाँ मैंने बताया मसरूफियत है, ये काम जो कार्रवाई थी वो सुबह सुबह हो गई, आप लोगों के साथ मैंने टाइम शेड्यूल तय कर दिया, मैं यहाँ आ गई। सो टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज टाइम इज मनी, इवेंचुअली तो पैसा कमा रहे हैं, चाहे आप मोमबत्ती बना के कर लें। मुझे नहीं पता था कि मोमबत्ती बनाना जिसको आता है अपने पैसे कमा सकता है। आई फाउंड दिस आउट जब ये चैरिटी बाजार रखते हैं सरीना में, मैरियट में, इफ्मा वालों के, वफा वालों के, पाक चाइना फ्रेंडशिप सेक्टर में लोग फिर में, तो पता चलता है कि एक मोमबत्ती 1000 की कुछ हो सकता है। गाँव में किसी बंदे को पता है मोमबत्ती 1000 की, वो कहेगा रहने दो, लेकिन मुझे कह रहे परफ्यूम कैंडल, अच्छा आई बॉट दोस, घर आके चलाई भी है, जब उसको ऑफ करते हैं ना उसकी कोई स्मेल है जो मोमबत्ती की होती है, जब चल रही होती है हल्का सा एटमॉस्फेयर में सकते हैं कि कुछ सेंस आ रहा है, तो उतना सा एयर फ्रेशनेस दिया है, लेकिन विजुअली इट इज अपीलिंग, दे आर सेलिंग इट। सो इसका मतलब है कि आपके अंदर स्किल होना चाहिए। इट डजंट मैटर कि आपके पास डिग्री, अगर बहुत अच्छा लॉयर है उसका एक ग्रेड स्टूडेंट है और क्लाइंट्स नहीं है, डिग्री का क्या करेंगे? ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने स्किल सेट पे काम करें। सो मूविंग ऑन, इसका मैं अगर मेरे लाइफ की बात करूँ तो आपने जैसा कि की है आई डू 100 सो कैसे मतलब मैनेज कैसे करती हैं, होता कैसे है? ये
पे मेरी बस रात की। और उसने मुझे बात बनाया मेकअप फॉर फजर एंड दैट इज इट, बट आई डोंट स्लीप। इसका मतलब ये नहीं कि आई डू गेट थोड़ा सा रेस्टिंग टाइम मिलता है, लेकिन आई थिंक एट अ सर्टेन टाइम इन एज व्हेन यू आर नियर 40 तो आपको मेंटल रेस्ट की ज़्यादा ज़रूरत है देन फिजिकल रेस्ट। तो अपनी बॉडी को इतनी स्लीप की ज़रूरत नहीं होगी जितना मेंटल रेस्ट की ज़रूरत होती है। देयर आर टाइम्स मैं बहुत ज़्यादा सो रही होती हूँ बट मेरा माइंड एट रेस्ट नहीं होता, कोई भी वजह हो सकती है, उसमें काम की वजह हो सकती है, उसमें कोई और परेशानी हो सकती है, बुजुर्ग जो है मैं बहुत ज़्यादा बुजुर्गों की ड्यूटी कर रही थी तो उनमें से हो सकता है किसी की तबीयत खराब हो तो वो एक वजह हो सकती है। मेरी अपनी मदर है या मदर इन लॉ है, इन लोगों में से कोई किसने कहीं जाना है या मेरे काम पेंडिंग है, सो एक चेक लिस्ट बना कर और जो एक चीज़ जो मैंने स्कूल टाइम से स्टूडेंट बॉडी प्रेसिडेंट रही तो हमारा एक ईयरली कैलेंडर बनता था जिसके अंदर हमारा होता है कि इन डेज पर सेरेमनी होगी, इन डेज के अंदर मीना बाजार करना है, इन डेज के अंदर जो आपको कलरफुल वीक है, कल्चर वीक हो सकता है आप नाम कुछ और हो गया ये होने, तो मुझे वो आदत अभी भी है और एज अ लॉयर तो ऑब्वियसली आपको डेट्स और इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है अपॉइंटमेंट्स का। तो मेरे इन घर के काम का भी ऐसा शेड्यूल का मैंने बनाया होता है, सो देयर आर चेक पॉइंट्स, किस वक्त शॉपिंग पे लेके जाना है, कब ग्रोसरीज करनी है, कब किसके साथ कितना टाइम गुजारना है, एंड समटाइम्स जब मैं नहीं कर पाती को अब कुछ चीज़ लेट होती है फिर ऑन द वीकेंड साइड होता है जिसमें मैं लोगों के साथ बैठ के बात करना, जिसमें मेरी बिकॉज आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, तो फादर इन लॉ मदर इन लॉ के साथ बैठ के बाबा अम्मी के साथ जो वक्त गुजारना है, अगर ड्यूरिंग द वीक में नहीं कर पाती हूँ तो बिकॉज ऑल ऑफ अस आर अर्ली राइजर्स, तो मैं वीकेंड में सुबह नमाज के वक्त उनके साथ बैठ जाऊँगी जाके एंड आई विल मेक अप फॉर द वीक, उनके साथ बैठने की बात सारा कुछ कैसे हुआ इसका हुआ जो उनकी इंटरेस्ट की बात है, बिकॉज माय फादर वाज आल्सो अ लॉयर, सो लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसे तक बताने की कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे घर में हर कोई चाहिए खुली होती है, सो खाने की टेबल पे भी हम डिस्कस, दिस इज नॉट हेल्दी, दिस इज नॉट हेल्दी, बट वो भी ऐसे करना हम कोशिश करते हैं कि कितना भी हम फोन ना यूज करें, बट स्टिल अपने क्लाइंट्स के साथ बाउंड्री सेट करनी होती है, बट समटाइम्स वी फेल टू डू दैट, कोई इमरजेंसी किसी को हो जाती है, तो फिर हमारा बेसिकली इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि नीयत होनी चाहिए किसी काम को करने की, तो नीयत होती है फिर अल्लाह ताला की मदद करते हैं, मतलब पूरा ज़माना मदद करता है अगर आपकी नीयत अच्छी है, अगर आपका नीयत किसी काम को करने का नहीं है तो फिर बहुत सारे बहाने आप बना सकते हैं, बट आई थिंक मैं सोशल इंटरेक्शन पर बहुत ज़्यादा वर्किंग करती हूँ एंड आई ऑल्सो टीच माय डॉटर कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक अप अबाउट योरसेल्फ, दूसरों के साथ टाइम गुजारना बैठना, क्योंकि आप बड़ों से लर्न करें। आई डिड नॉट नो व्हाट हैपेंड इन 1950 बट माय फादर इन लॉ वाज, सो आई कैन आस्क हिम कि जब ऐसी सिचुएशन में आपने क्या किया था, जब वॉर हुई तो आपने क्या किया था, क्योंकि द लॉट ऑफ टाइम्स जब जैसा अभी मैं कहती हूँ कि मेरा बहुत ज़्यादा स्टेट कॉलेज हुआ जब 2005 का दरगला आ गया, तो हम लोगों ने यहाँ पर मीना बाजार के साथ आई एडवाइस प्रेसिडेंट एंड आई एडवाइस किया मीना बाजार करते हैं सो दैट वी कैन लोग डोनेशन देना बंद कर रहे हैं, हम कैसे पैसे लोगों से ले मतलब स्टूडेंट्स कैसे डोनेट करेंगे, सो हम स्टूडेंट के साथ बाइक स्ट्रेट किया थी और हम लोगों ने मीना बाजार पूरा ऑर्गेनाइज किया और किसी ने खाना बनाया, किसी ने कैंडल्स बनाए, किसी ने घर में फ्रेंडशिप बैंड्स बनाए और टीचर्स ने हमारे साथ कोलैबोरेट करके एंड वी जनरेटेड एन अमाउंट जो कि मतलब इट वाज लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि 3 लाख रुपीस विद इन 2 आवर्स हमने जनरेट कर लिया था, उस टाइम के लिए एफर्ट स्टूडेंट काउंसिल बहुत ज़्यादा अमाउंट है, इट इज एक्चुअली फिर भी बात की बात अमाउंट की थी, इट वाज द एफर्ट तो लेकिन हम और ये आइडिया था कि अभी के लोग डोनेशन के टाइम पर बंद कर रहे थे, लेकिन हम डोनेट करते लोग महीने बाद कोई भी डोनेट नहीं कर रहा, सो वहाँ से मैंने सीखा कि इट इज इम्पोर्टेंट कि आपने नए आइडियाज अपनी लाइफ में गुजारने के बारे में सोचना, क्योंकि लाइफ एक जैसी नहीं बनता, इट्स अ जर्नी, सो नो वन डे इज द सेम द अदर डे, कुछ चीज़ें रूटीन में होती हैं, ज़ाहिर है आप खाना बनाना ही तो देयर आर पिज़्ज़ा डेज ऑल्सो, लॉन्ड्री करनी है, आई एम वेरी मतलब आई थिंक कोविड के बाद से हर बंदे सफाई का बहुत ग्रुप भी चढ़ गया है, सो मैं लॉन्ड्री का बहुत कुछ होता है कि लॉन्ड्री इज ऑलवेज देयर फॉर डर्टी क्लोथ्स इन माय हाउस, या धुले होंगे या पहने भी होंगे, जब पहने भी कोई गंदे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा, लेकिन हमने इस चीज़ को देखा है कि टाइम मैनेजमेंट ये सीखना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, आप जिस तरह हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ा है, तो हमारी एक क्लाइंट प्रोफेशनल कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, आप ब्रेक कर सकते हो, तो अगर मैं आपसे किसी केस को देखिए बात ये जो मैंने क्लाइंट की आइडेंटिटी डिस्क्लोज की,
आफ्टर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो वो उसको लिख देते हैं डिसीजन देते हुए कि इसको रिपोर्ट करें, सो दैट बिकम्स अ लॉ उस पॉइंट के ऊपर, पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। तो उसमें क्लाइंट आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होती, Okay. उनका नाम भी डिस्क्लोज कभी कभार नहीं करते, बट सिचुएशन डिस्क्लोज होती है। Yeah. So can you tell me about one case that stuck with you throughout your career, and also one regret? रिग्रेट तो एज सच मैं नहीं कह सकती हूँ, बिकॉज मेरा जो क्लाइंट्स को कह रही कि जब मैं कोई केस बुक करती हूँ उसका प्रोसेस बहुत रफ है और टफ भी है, बिकॉज जो मेरा फर्स्ट सेशन जो मैं क्लाइंट को देती हूँ वो 6 आवर्स का होता है, 5 to 6 आवर्स। इट्स इनफ टाइम कि मैं जज कर लूँ कि जो आए हैं कि मेरे साथ एक्चुअली कोई प्रॉब्लम है भी है या कोई साइकोलॉजिकल इशू तो नहीं है, और तीसरी बात ये है कि ये सिर्फ काम करने तो नहीं आ रहे दूसरी बात। अगर तो केस है तो सेकंड सेशन बुक होगा, वरना थैंक यू वेरी मच हो जाएगा, ठीक है। Psychological fit. ऑब्वियसली बिकॉज देखिए काउंसलिंग तो मैं कर ही नहीं सकती ना, तो फैमिली केसेस में बहुत दफा ऐसा होता है कि गैस लाइट लॉक करना था, बहुत एग्जॉस्ट होते थे टाइम्स, बिकॉज अभी हम जब हम डिस्कस कर रहे थे आपके टीचर्स के साथ तब हमने कहा था कि आप इतना ज़्यादा टाइम दे रहे हैं लोगों को, so sometimes it's frustrating, obviously it is sometimes frustrating for me also, लेकिन उस टाइम में यही चीज़ जज करनी होती है कि जो सामने आने बंदा बैठा है वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो एक्चुअली केस करना चाह रहा है या वो दुखी है या उसका कुछ रिड्रेसल है जो बात करके हम sometimes you need somebody जो अपनी बात सुन ले। सो मैं साइकोलॉजी हेल्प्स मी कि मैं वही जो आप कह रहे हैं कि उसको काउंसलिंग एक तरह का नाम दिया जा सकता है, मैं ट्रेन काउंसलर तो नहीं, लेकिन मैं हेल्प कर देती हूँ कि उनका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई उनको कर देती हूँ आप उनको देख के समझ लेते थे। और बात करते हैं सारे Yeah, 6 घंटे yeah, का yeah, of course. और 6 घंटे से लोग टाइम वी ईट टुगेदर, हम जब टाइम स्पेंड करते हैं तो हम एक अच्छे खाना खाएंगे, हम उसको whatever they want, because हम उनसे टाइम डिस्कस कर लेते हैं कि वो लंच टाइम आ रहा है, whether they want to have what do they want to have, do they have any kind of allergy, क्या वो शुगर पेशेंट है, उनके साथ आप और ड्राइव करना जो मेरा ऑफिस भी बना है बहुत कंड्यूसिव हमने बनाया है कि अगर बच्चे आ रहे हैं तो वी हैव अ स्पेस फॉर देम टू प्ले, ठीक है। और आई हैव अ फीमेल हेल्प जो है उनसे बहुत छोटा बेबी है जो कि कैरी करना है तो वो हेल्प कर देता है। अच्छा उनसे कोई एलिजिबली आ रहे हैं जिनको खास जरूरत है कि हमारा ऑफिस के बीच एक्सेसिबल है, अगर ऐसा उनको चाहिए कोई हेल्प चाहिए वो अवेलेबल है, किस एज ग्रुप से मेरी मुलाकात होने वाली है, तो मैं काफ़ी होमवर्क करती हूँ क्लाइंट्स को, एंड देन आई विल दिस बिकॉज़ इट्स वेरी डिफिकल्ट वंस यू गो अगेंस्ट यू गो टू द कोर्ट, a lot of time lawyers don't do this kind of homework because उनके पास टाइम नहीं होता, वो कहते हैं केस आगे जाए, मैं कहती हूँ कि लोगों की हेल्प होनी चाहिए, if I do one job and I do it well, I don't do 10 tasks and do them improperly, मैं इसके ऊपर मेरी वर्किंग नहीं होती। सो और अब जो हम जब लिटिगेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो वो भी जो हमारा मेन मकसद ये है कि प्रॉब्लम सेटल हो, वी डोंट डू जस्ट लिटिगेशन फॉर द सेक ऑफ लिटिगेशन बिकॉज नंबर्स बहुत हाई होते हैं और पीछे से लॉयर्स भी काम रहे हैं और जजेस भी काम रहे हैं, पर लिटिगेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और उसकी वजह ये है कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही। देखिए आप कभी भी अगर आई इन्फेक्शन हो जाए यू विल नॉट गो टू ऑर्थोपेडिक, ठीक है, आप आई स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, तो जब लॉयर्स भी सारे स्पेशलाइज नहीं होते उसका भी नुकसान होता है, क्योंकि देखिए किसी क्रिमिनल लॉयर के पास आप फैमिली केस भेजेंगे वो उतना सेंसिटिविटी से बात सुनेगा ही, उसको ये बात समझ ही नहीं आएगी कि घर में गैस नहीं आ रहा, हो सकता है कानून का मसला ये कि घर में गैस नहीं है और बार बार सिलेंडर खत्म हो जाता है, हो सकता है इशू ये हो, कभी कभार तो पेटी इशूज होते हैं और वो स्नो और इफेक्ट से बहुत बड़े लगते हैं, मेरा काम ये है कि मैं इश्यूज को डिटेक्ट करके उनके सामने रख देती हूँ एंड देन आई गिव देम टाइम, मैं फर्स्ट मीटिंग में कभी केस को नहीं करती। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि आप कहेंगे सक्सेस इसको आप कह सकते हैं, सक्सेस एक्चुअली बहुत ही वाइड है, आप कहेंगे कि इफेक्टिवली लोगों की हेल्प आप कर सकते हैं, क्योंकि उनका प्रॉब्लम है कि फर्स्ट सेशन में कर देती हूँ उनका प्रॉब्लम आ क्या रहा है, इज इट द जॉइंट फैमिली सिस्टम, इज इट द न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम, इसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा, जॉइंट के पीछे पड़े हुए हैं सारे न्यूक्लियर के जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैं डिस्कस करूँ तो आइडेंटिफाई आवर्स उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, तो उनका इशू क्या है, क्या जॉब इशू है, क्या फाइनेंस इशू है, क्या जो सोशल सेक्टर है वो इशू है, तो उनका इशू उनके सामने रख देते हैं, फिर दे गो बैक, दे थिंक अबाउट इट एंड देन दे कम बैक, और फिर अगर उन्हें लिटिगेशन करनी है तो वी गो फॉर दैट, कभी कभी 3, 4, 5, 6 सेशंस के लिए जहाँ तक आप बात करते हैं कि एक केस जो मुझे
रिश्तेदार दोस्त भाई आपके दिल में उसका रह जाता है। तो there was one case शायद जिसमें विडो मदर थी और बहुत बेबी थी बच्ची और कार एक्सीडेंट में मतलब हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो वो दोनों बच्चे दे बोथ सर्वाइव। अब जो ऑब्वियसली पैटर्नल फैमिली थी दे वांटेड कि वो हमारे साथ रहे, लेकिन वो मुमकिन नहीं था उनके लिए ना इधर के बाद शी वांटेड कि वो ना रहे। तो उन्होंने जो बच्ची थी उसको उन्होंने कहा कि उसके जरिए उस माइनर के जरिए दे वांटेड टू प्रेशराइज द मदर। मैंने उनसे कहा बैठ के बात हो सकती है, बैठ के बात हो सकती है, बट नहीं हुआ था। तो फिर अपनी बच्ची को क्या बहुत विदिन आवर्स में कवर हो जाती है। उसके बाद जब उन्होंने एजुकेशन ली कि वो हाई कोर्ट में गए बट दे डिडंट गेट द कस्टडी ऑफ दैट माइनर और वो हाकिम सक्सेसफुल अपनी लाइफ में हिस्सा नहीं कि मैंने उसको पहले दिन ये बात कही थी कि जितना भी टाइम लगेगा आपको इस एजुकेशन प्रोसेस में आप अपनी अर्निंग शुरू करो, सिर्फ अपने हस्बैंड की पेंशन में ना डिपेंडेंट हो, क्योंकि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो वहाँ से इतनी ऐसी बात हो कि जैसा महंगाई बढ़ रही है ऐसे मुश्किल हो जाएगा। और मेरे उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? तो मैंने उनसे कहा कैन स्वेटर आई आस्क्ड हिम कितने स्वेटर बोल सकती हूँ, आई कैन डू दैट एंड शी डिड इट। और अब माशाल्लाह वो सक्सेसफुली अपने घर का काम भी कर रही है और बच्ची भी बड़ी हो गई है और वो साथ साथ जो है वो अपना स्वेटर बनाने वाला काम जो उसकी उन्होंने मशीन ले ली है शी इज डूइंग दैट। So, wrapping this around to this, so आखिरी सवाल जो मैं आपसे करना चाहती हूँ that is कि एक एडवाइस क्या देना चाहिए कि आप अपनी अपनी जनरेशन को चूँकि अक्सर पेरेंट्स होते हैं नॉट सपोर्टिव इनफ के नहीं साथ बताया और नहीं करना इट्स नॉट द पीरियड। सो हाउ विल यू एडवाइस देम कि ये फील्ड किस तरीके की है? देखिए इसमें मैं तो ज़रा आप जब आप केस में आर्ग्यू करते हैं तो आपको सारे गुड एंड बैड दोनों बातें बतानी से जुड़ी होती हैं। एक तो ये कहते फैमिली कल्चर की बात होती है, लेकिन कहते हैं कि हमारे खानदान में 2 वकील हैं, मैं कहती हूँ बहुत अच्छी बात है कि आपका अपना हो जाएगा। ठीक है, ये अच्छी बात है ना, ये तो पॉजिटिव बात है। फीमेल्स को ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि उनकी लाइफ एक जैसी नहीं रहती, बिकॉज विद मैरिज विद चिल्ड्रन व्हेनेवर दे वांट टू डिसाइड, ये नहीं कि लाजमी उन्होंने कर दी, देयर इज नो टाइम फॉर दैट। हो जाती है बहुत अच्छी बात है, अगर उसको टाइम लगता है कि नहीं होती इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ एक जैसी नहीं रहती। जैसे आप सारी जब मैं आपकी एज की थी और आप ज़रा मेरे घुटने में दर्द होता था कभी कभी, तो मैं सारे काम नहीं कर सकती, सो आई डोंट गेट टायर्ड ऑल्सो, समटाइम्स आई गेट कोल्ड शोल्डर। इस तरह आप एक जैसे नहीं रहते हैं, तो उसमें आपको ये देखना है कि आप ऐसा करियर परस्यू करें जो फ्लेक्सिबल हो, जिसकी टाइमिंग फ्लेक्सिबल हो, जिसमें ऑप्शन फ्लेक्सिबल हो। जैसे आप इस कोविड के बाद आई थिंक बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई, जैसा मैं ऑनलाइन भी कंसल्टेशन दे रही हूँ, जो आई थिंक कोविड से पहले मैंने इसको कहते तो बेहोश हो जाता, मैंने पैसे भी ले रहे हैं और ना वो आ रही है ना हम आ रहे हैं, बाकी चेहरे भी नहीं दिखा रहे, तो बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन कोविड ने हमें समझा दिया। तो इसमें एक ऐसा प्रोफेशन है, आप टीचिंग में जा सकते हैं, आप टेबल डेस्क जॉब कर सकते हैं। पाकिस्तान के इस तकरीबन तमाम डिपार्टमेंट्स में इंक्लूडिंग दी आर्मी नेवी एयरफोर्स आप वकालत करके उसमें जा कर सकते हैं। तो ये आपकी मर्जी है कि आप घर बैठना चाहते हैं, आप घर में बैठ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आप अच्छी भी अपनी रिसर्च कर सकते हैं घर बैठकर। सो ये और किसी मेरा ख्याल है प्रोफेशनल डिग्री के अंदर घर से बाहर निकले कुछ नहीं कर सकते आप, बस इतने सारे ऑप्शंस नहीं होते आपके, बट इसमें आपके पास ऑप्शंस हैं, फ्लेक्सिबल है। और अगर आप देखें एक डॉक्टर बनने में जितनी इन्वेस्टमेंट आपको लगे, इंजीनियरिंग में इन्वेस्टमेंट लगेगी, सीए में इन्वेस्टमेंट लगेगी, इवन साइकोलॉजी का जो मास्टर्स करके ट्रेनिंग करते हैं वो जो उस इन्वेस्टमेंट को देखें और इस डिग्री की देखें तो बहुत काम होता है। और घर का वकील हो जाएगा जो मर्जी करेंगे उसके लेकिन जो मर्जी करना नहीं है, ये आपका वर्ड है, वी कैन नॉट टेक द लैकुनास ऑफ द लॉ, इसलिए कि आप घर का वकील। और मैंने मुझे बताया कि शादी बहुत एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है, अगर आप वकील होते हैं तो आपको मेन सेरेमनी में बिठाएंगे, वरना आप गेस्ट होंगे। Thank you so much for being present. Thank you. You're welcome. I'm really honored. It Thank was you. amazing. You answered all of our questions with such grace. And it inspired us a lot. Like for me, it will be. हमें इस कॉलेज में रह के अब हो रहा है कि हम भी एक पॉइंट तक पहुंच सकते नहीं नहीं, आप पहुंचेंगे, आप पहुंच रहे हैं। ये दरख्त की तरह है, पौधे की तरह। तो अब देखिए जब छोटा सा पौधा होता है उसमें अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रूट लगा देंगे तो वो बेचारा मर ही जाएगा। एक वक्त चाहिए होता है एक चीज़ को डेवलप होने, स्टेबल डेवलप होने, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग इसकी बात कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you so much. अल्लाह हाफ़िज़। She's signing off from Inspiring
IIT, like